السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، جس طریقے سے میں روزانہ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوتا ہوں مسائل کا سیشن لے کر کے، مسائل کا باب لے کر کے، کہ کس طریقے سے اپنے روزمرہ کی زندگی میں آپ کے جو مسائل ہیں اس میں آپ کس طریقے سے مسائل کی روشنی میں اپنے کام کو کریں، مسائل کی روشنی میں اپنے کام کو کریں، جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور دیگر تمام کی تمام عبادات جو ہیں اس کے اندر جو پیش آنے والے روزمرہ کے مسائل ہیں وہ تمام کی تمام میں آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوتا ہوں میرے دوستو۔ اور بالکل میں کتاب کے ساتھ پڑھاتا ہوں، بالکل میں کتاب کے ساتھ پڑھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو میں دلیل کے ساتھ بتا سکوں، دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے مسائل کو میں پیش کرتا ہوں اور صحیح طریقے سے میں پڑھا سکوں میرے دوستو۔ میں وہ چیز آپ حضرات کے سامنے لے کر کے حاضر ہوتا ہوں جو پیڈ کورسز کے اندر پائے جاتے ہیں، جو پیڈ کورسز کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ سے کوئی چارج نہیں لیا جا رہا ہے، کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بس آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا وقت دے کر کے اس کو سیکھ لیں۔ اور آپ لوگوں کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ آپ حضرات وقت دیتے ہیں، الحمدللہ آپ حضرات وقت دیتے ہیں اور بہت بہترین وقت دیتے ہیں۔ اور اس میں آپ حضرات کو سکھاتا بھی ہوں، پڑھاتا ہوں بھی ہوں، بالکل ایک ایک چیز میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو مسائل کے اعتبار سے، جو جس طریقے سے یا جس انداز سے آپ یہ کہہ لیں کہ مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو بیٹھا کر کے جس طریقے سے مسائل بتائے جاتے ہیں مدارس کے اندر، اسی طریقے سے میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ لوگوں کو میں پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ مسائل میں یا پھر فقہ کے اندر، اسی طریقے سے عقائد کے اندر، اسی طریقے سے تاریخ کے اندر میں آپ حضرات کو بیسک ٹو ایڈوانس پڑھا رہا ہوں۔ اور میرا کلاس اصل میں چلتا ہے رات میں شام 7 بجے سے 8 بجے تک کا کلاس ہمارا چلتا ہے روزانہ الحمدللہ۔ لیکن آج میں اتوار کے دن کی وجہ سے میں ابھی آن لائن آ گیا، لائیو آ گیا آپ حضرات کے سامنے، کیونکہ آج اتوار کے دن کی چھٹی کی وجہ سے کافی لوگ رہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جتنا جلد ہو سکتا ہوں سیشن کو شیئر کر دیں، جتنا جلد ہو سکتا ہوں سیشن کو شیئر کر دیں۔ انشاءاللہ آج رات کی جو پڑھائی ہونے والی ہے، یعنی کہ آج رات کو جو پڑھائی ہوگی وہ ابھی ہی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آج رات کو جو پڑھائی ہوگی وہ پڑھائی ابھی ہی ہو جائے گی انشاءاللہ، چونکہ پھر یہ سبق دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے نہیں لاؤں گا، چونکہ ابھی میں پڑھا دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے جتنا جلد ہو سکتا ہو ذرا سا شیئر کر دیں، آپ حضرات شیئر کر دیں اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے مسائل کو پڑھایا جا رہا ہے۔ جو مسائل آپ کے ذہن میں بالکل بوجھ بنا ہوا ہے کہ اس مسئلے کو کس طریقے سے کیا کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، اور شرم سے بعض لوگ پوچھ بھی نہیں پاتے ہیں، علماء کرام سے شرم محسوس کرتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو نماز کے اندر، وضو کے اندر، اسی طریقے سے اپنی زندگی کے اندر جو مسائل ہیں وہ تمام مسائل پر انشاءاللہ میں آپ کو کتاب کے ذریعے سے پڑھاتا ہوں، بالکل تفصیل کے ساتھ پڑھاتا ہوں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ذرا سا شیئر کر دیں، آپ حضرات شیئر کر دیں اور لوگوں کو جوڑ لیں، آپ حضرات شیئر کر دیں سیشن کو۔ انشاءاللہ میں پڑھاؤں گا آپ لوگوں کو بہت بہترین انداز سے پڑھاؤں گا، اور آپ آج پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ کہ مسائل کو جس طریقے سے مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے، جس طریقے سے مسائل کو مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے، اس طریقے سے میں آپ حضرات سے پڑھاؤں گا، آپ سے بالکل کنیکٹ ہو کر کے پڑھاؤں گا۔ آپ لوگوں کو ایسا لگے گا جیسے کہ میں مدرسے کے اندر پڑھائی کر رہا ہوں، میں جس طریقے سے آپ کو لگے گا کہ کہاں پڑھائی کر رہے ہیں، مدرسے کے اندر پڑھائی کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، فیس بک والے حضرات سے بھی گزارش ہے اور یوٹیوب والے حضرات سے بھی گزارش ہے کہ جو نئے حضرات ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، فالو کر لیں اور ذرا سا شیئر کر دیں۔ آپ کے ایک شیئر سے اگر کوئی ایک مسئلہ سیکھ جاتا ہے تو آپ کے لیے ذریعہ نجات کے لیے کافی ہوگا میرے دوستو، ذرا سا شیئر کر دیں۔ اور جو نئے حضرات ہیں ان سے ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دیکھیں، آپ لوگوں کے درمیان سے یہ تمام مسائل گزر چکے ہیں، استنجا کے وقت کے چند مکروہات وغیرہ، کہ استنجا کرتے وقت کیا کیا چیزیں مکروہ ہیں، یہ تمام چیزیں گزر چکی ہیں۔ استنجا کے چند آداب کیا ہیں، اسی طریقے سے چمڑا کے موزے اور جوتے وغیرہ کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے، یہ تمام مسائل آپ حضرات کو میں پڑھا چکا ہوں، لیکن آج کا میں سبق آپ کو پڑھاؤں گا اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے سے لے کر کے آ رہا ہوں کہ آپ کو میں کیا کیا پڑھا چکا ہوں اور آگے کیا پڑھ رہا، تاکہ پیچھے سے جب چیزیں ملتی ہیں نا کہ پیچھے کیا ہوا اور آگے کیا ہونے والا ہے تو چیزیں سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو ہلکا سا میں پیچھے سے لے کر کے آ رہا ہوں، صرف سرخی پڑھ رہا ہوں، آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا میں۔ ناپاک زمین کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس پر بھی بات ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے ناپاک فرش کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، گھاس پھوس اور درخت وغیرہ اگر ناپاک ہو جائے تو اسے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے میرے دوستو، دستی نل پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے، اسی طریقے سے بلی وغیرہ اگر ڈوب جائے پانی میں تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ اس کے بعد میں وضو کے مسائل آ گئے تھے میرے دوستو، اس کے بعد کیا آ گئے تھے، وضو کے مسائل آ گئے تھے۔ تو کل یہ بات ہوئی تھی
परसों के सेशन में, परसों का जो क्लास था हम लोगों का, उसमें ये बातें आई थी कि वज़ू के मसाइल में क्या क्या बातें आई थी। तो वज़ू मोमिन का ज़ेवर है। वज़ू क्या है? वज़ू मोमिन का ज़ेवर है। शरीयत में वज़ू की बहुत अहमियत है। इसके ज़रिए नज़ाफ़त व तहारत के अलावा सबसे अहम फ़ायदा ये है कि क़यामत के दिन, क़यामत में वज़ू करने वालों का जो आज़ा होगा, क़यामत में वज़ू करने वालों का जो आज़ा होगा वो चमकदार होगा, वो चमक रहा होगा। क्या होगा? वो चमकदार होगा, वो चमक रहा होगा। इसके अंदर दो बातें पेश की गई थी कि सबसे पहली बात तो ये है कि सहाबा किराम रज़िवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने सवाल किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह, कल क़यामत के दिन जब इतना बड़ा मजमा होगा तो आप अपनी उम्मतियों को वहाँ पर कैसे पहचानेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन उम्मत मुहम्मदिया जो लोग वज़ू कर रहे हैं, जिन लोगों ने वज़ू किया होगा, उनका हाथ और पैर यानी कि जो आज़ाए वज़ू हैं, जहाँ पर वज़ू किया जाता है, यानी कि हाथ है, मुंह है, इसी तरीके से पैर है, तो वो आज़ा चमकदार होंगे। वो क्या होंगे? वो आज़ा चमक रहे होंगे, बिल्कुल चमक रहे होंगे, उससे लोग पहचान में आ जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि वज़ू को वज़ू की तरह किया करो, वज़ू के आदाब को जान करके उसका पाबंद बन करके वज़ू किया करो। इसी तरीके से दूसरी बात ये बताई गई थी इसके अंदर दूसरी बात ये बताई गई थी कि वज़ू से गुनाह झड़ते हैं। वज़ू से क्या होता है? वज़ू से गुनाह झड़ते हैं मेरे दोस्तों, कि जिस तरीके से आप जिस आज़ा के भी को धुलते जाएंगे, आपका के जो आज़ा हैं उस आज़ा से वो तमाम गुनाहें भी धुलती जाएंगी मेरे दोस्तों। जैसे कि आपने चेहरा धोया तो आपके जो चेहरे के गुनाह हैं वो धुलेंगे। इसी तरीके से जब आपने हाथ धोया तो जो हाथ से जो गुनाह किया होगा वो गुनाह धुलता है। इसी तरीके से पाँव जब आप धोएंगे तो पाँव धोने वाला शख्स का जो पाँव से चल करके जो गुनाह किया है तो उसका वो गुनाह माफ़ होता है, उसका वो गुनाह झड़ता है। मेरे दोस्तों, ये दो बातें अर्ज की गई थी कल। मैं तफसील से बिल्कुल बताया था कि इसके अंदर बहुत सारी अहादीस आई थी, कुरान की बातें आई थी, तो मैं तमाम को आप हजरात के सामने रखा था। मेरे दोस्तों, अब यहाँ पर से हम लोग आगे चलेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि जो नए हजरात हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोस्तों देखें आगे, अब यहाँ से एक मसला है जो आगे हम लोग मसला को पढ़ेंगे कि वज़ू के अरकान क्या हैं। वज़ू के अरकान के अरकान इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन फिर से सुन लें क्योंकि ये फ़राइज़ की बात है, क्योंकि ये फ़राइज़ की बात है। मेरे दोस्तों, वज़ू के अरकान कुल 4 हैं। वज़ू के अरकान कितने हैं? कुल 4 है। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिखा करें ना, 4, 5, 6 वगैरह। मैं जो भी बोलता हूँ तो आप बोला करें, उसमें आपको ये फ़ायदा ये होगा कि आपको मसाइल याद हो जाएंगे। आपका फ़ायदा क्या होगा? आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको मसाइल याद हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, मैंने कहा कि वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं, जल्दी से बता दें। वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं? कोई मुझे सेंसिटिव होकर के सुन रहे हैं तो जवाब दें, कमेंट बॉक्स में जवाब दें। कितने हैं वज़ू में? कुल फ़राइज़ कितने हैं? कोई जवाब दे सकते हैं? जल्दी से दे दें। वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं? कोई जवाब दें। देखें, वज़ू में कुल 4 फ़राइज़ हैं। नंबर 1, पूरा चेहरा धोना। नंबर 2, केहनियों तक हाथों का धोना। नंबर 3, चौथाई सर का मसह करना। नंबर 3 क्या है? चौथाई सर का मसह करना। नंबर 4 क्या है? टखनों तक पैरों का धोना। देखें, नंबर 1 क्या है? पूरा चेहरा का धोना। नंबर 2, केहनियों तक दोनों हाथों का धोना। नंबर 3, चौथाई सर का मसाह करना। नंबर 4, टखनों तक पैरों का धोना। ये 4 फ़राइज़ हैं जो नमाज से पहले वज़ू के अंदर जो है ये 4 फ़राइज़ पाए जाते हैं, जिनका अमल में लाना ज़रूरी है। अगर आप इसको अमल में नहीं लाएंगे तो आपका वज़ू नहीं होगा मेरे दोस्तों। तो 4 फ़राइज़, नंबर 1 पूरा चेहरा धोना। नंबर 2 केहनियों समेत हाथ का धोना। नंबर 3 चौथाई सर का मसाह करना। नंबर 4 टखनों समेत
समेत पैरों का धोना। आगे देखें क्या है, पानी किस हद तक बहाना वजू के अंदर ज़रूरी होता है, पानी किस हद तक आप खर्च कर सकते हैं या कितना कम पानी से आप वजू कर सकते हैं। दो बातें हैं, या तो आप एक इंसान है कि जिसके पास पानी की किल्लत नहीं है और बहुत पानी से वजू करता है, वजू पर वजू करता है, तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है उसके लिए? तो मेरे दोस्तों, ऐसा करना उसके लिए दुरुस्त नहीं है कि वजू पर वजू किया जाए। मान के चले हाथ धो रहा है, बस धो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है आप पानी का इस्तेमाल बेजा करें और पानी को बर्बाद करें, पानी का ज़िया करें। मेरे दोस्तों, इसी तरीके से एक इंसान है कि शरान धोने का मफहूम क्या है, इसको समझिए। शरान धोने का मफहूम उस वक्त तक सादिर ना होगा जब तक कम अज़ कम वज़ू के आज़ा को तर करने के बाद उससे 2 कतरे न टपके। मेरे दोस्तों, यहाँ पे जो बातें कही जा रही हैं वो ये है कि इतना कम पानी ना हो कि मान के चलिए आप चेहरे में मारें तो बिल्कुल चेहरे में ही लगा रह जाए और पानी ना टपके, तो इससे वज़ू ना होगा। कम से कम 2 कतरे के बारे में यहाँ पर जिक्र आया है कि 2 कतरे टपके तो वज़ू हो जाएगा, फ़र्ज अदा हो जाएगा। मेरे दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, आज जितने लोग देख रहे हैं आप लोगों से गुजारिश है ज़रा सा शेयर कर दें। आज आपके सामने मैं दिन में हाजिर हुआ हूँ क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, आज काफ़ी लोग घर में रहते हैं। मैं सोचा कि वज़ू का जो मसाइल है, वज़ू के जो फ़राइज़ हैं, उसके जो आदाब हैं, उसके जो इम्पोर्टेंट मसाइल हैं वो आप हज़रात के सामने पेश कर दिया जाए ताकि लोगों को फ़ायदा हो। आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, ज़रा सा शेयर कर दें, अपने घर वालों तक, जानने वालों तक, अपने दोस्त अहबाब तक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह मैं रोज़ाना आपके सामने हाजिर होता हूँ इसी तरह के मसाइल को लेकर के। रोज़ाना आप 7 बजे से मेरा क्लास में आप ज्वाइन कर सकते हैं। कल मैं हाजिर नहीं हो सका, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ क्योंकि कल हमारे यहाँ का ट्रांसफार्मर उड़ गया था। तकरीबन ये चीज़ें तो आप देखने को नहीं मिलती हैं कि ट्रांसफार्मर उड़ जाने की वजह से काफ़ी परेशानी हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ। शहर है हालांकि, लेकिन ऐसा हुआ और 2 दिन से तकरीबन कल सुबह से लाइट नहीं की वजह से मैं नहीं आ सका कल। आगे देखें, अब यहाँ पर से एक बात ही कही जा रही है, जो मैं बात बताया कि अगर किसी के पास इतना कम पानी है कि वो पानी लिया और चेहरे में लगाया तो उससे कतरात नीचे ना गिरे, उसके कतरात नीचे ना गिरे, बिल्कुल चेहरे में ही लग करके वो पानी ख़त्म हो जाए, तो इतना कम पानी से अगर कोई इंसान वज़ू करता है तो फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। और आगे मिसाल देखिए, मसलन किसी शख्स ने बर्फ़ वगैरह से हाथ पैर को तर कर लिया, मसलन किसी शख्स ने हाथ पैर को बर्फ़ वगैरह से तर कर लिया और कोई कतरा नहीं टपका तो ये काफ़ी नहीं होगा, मेरे दोस्तों। आगे देखें, चेहरा की जो हद है उस हद की बात हो रही है कि चेहरे का जो हद है वो कितना होना चाहिए। लंबाई में पेशानी की इब्तिदा से लेकर ठोड़ी के निचले हिस्से तक, नीचे हिस्से यानी कि जबाड़े तक, जबाड़े का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। जबाड़ इसे कहा जाता है। जबाड़ किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है, आप देख रहे होंगे। लंबाई में पेशानी से लेकर के, यहाँ पेशानी इसे कहा जाता है कि यानी यहाँ पर जो बाल उगने की जगह है ना, यहाँ पर जो बाल उगने की जो जड़ है, यहाँ से लेकर के ये थोड़ी के नीचे तक का धोना फर्ज है, बशर्ते के दाढ़ी घनी ना हो और चौड़ाई में एक कान की लौ से दूसरे कान के लौ तक धोना वजू में फर्ज है। चौड़ाई में कहाँ तक? यानी कि कान जो देख रहे हैं ना और ये निकला हुआ जो देख रहे हैं, इसको लौ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको लौ बोलते हैं। तो एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक और पेशानी के जड़ से थोड़ी के नीचे तक ये वजू के दरमियान धोना फर्ज है। क्या है? ये वजू में धोना फर्ज है, ठीक है ना। अभी सुन्नत की भी बातें आएंगी कि सुन्नत क्या है और फर्ज क्या है और फर्ज और सुन्नत में क्या फ़र्क होता है, ये तमाम बातें भी आप लोगों के सामने आएंगी। आप लोगों से बस गुजारिश ये है कि आप लोग थोड़ा सा वक्त दे करके रहें, इंशाअल्लाह आप लोगों को तमाम बातें मैं समझाऊंगा। आगे देखें, ये समझ गए कि पेशानी का जो धोना है, पूरे सर का जो एक फ़र्ज़ में पढ़ाया 4 फ़राइज़ के, नंबर 1 पूरे चेहरे का धोना, नंबर 2 दोनों हाथों को कहनियों समेत धोना, नंबर 3 अपने पैर चौथाई सर का मसाह करना, नंबर 4 दोनों पैरों को ढकनों समेत धोना। ये 4 फ़राइज़ हैं। अगर इसको आप नहीं करेंगे तो आपका वज़ू नहीं होगा, ये फ़राइज़ में से है, ठीक है ना। अब आगे देखें, आपको मैं बता दिया चेहरे की फ़राइज़ के बारे में कि कहाँ से कहाँ तक धोना है। पेशानी के बाल उगने की जगह से ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक,
कि धोना फर्ज है। आगे देखें, आंख के ज़ाहिरी हिस्सा का धोना कहाँ तक है। मान के चले चेहरा तो धो रहे हैं, अब आप कहेंगे कि चेहरा के अंदर तो पूरी की पूरी बात ही आ गई कि चेहरा को धोना है, तो मैं तफसील से पढ़ा रहा हूँ ना आपको, मैं तफसील से पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ खोल खोल करके बता रहा हूँ। तो जैसे कि कोई चेहरा धोया तो मान के चले देखे ये आँख है और आँख की जो पलकें हैं उसका जो ज़ाहिरी हिस्सा है ये वाला, या फिर नाक के साइड वाला ये जो दीवार है ना, ये आँख के बगल में ये जो दीवार है, इस दीवार का भी धोना ज़रूरी है। अगर वहाँ पर पानी नहीं पहुँचता है तो आपका वज़ू नहीं होगा, देखें, ठीक है ना। आँख के अंदर पानी पहुँचाना फ़र्ज़ नहीं है, आँख के अंदर पानी पहुँचाना ज़रूरी नहीं है, आँख के अंदर पानी पहुँचाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आँख के बाहरी हिस्सा में पलकों के ऊपर तक पानी का पहुंचाना ज़रूरी है। इसी तरीके से नाक के साइड में जो दीवार है वहाँ पर भी भीगना ज़रूरी है, ठीक है। आगे देख लें, होंठों के ज़ाहिरी हिस्से को भी भिगाना ज़रूरी है। मान के चलें एक इंसान है जो इस तरीके से होंठ बंद किया और यहाँ पर जो ज़ाहिरी हिस्सा नज़र आ रहा है ना, ये सूखा तरी का हिस्सा, ये खुश्की का हिस्सा। होंठ के जो हिस्से होते हैं वो दो तरह के हिस्से होते हैं, एक तरी का हिस्सा होता है और एक खुश्की का हिस्सा होता है। एक तरी का हिस्सा है और दूसरा खुश्की का हिस्सा है मेरे दोस्तों। तो तरी का हिस्सा जो है वो तो अंदर के साइड में है, लेकिन जो खुश्की का हिस्सा है वज़ू में उसका भी धोना फ़र्ज़ है, उसको भी धोएंगे, अगर नहीं तो वज़ू नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देख लें, आप लोगों से गुजारिश है, यूट्यूब वालों से गुजारिश है कि आप हजरात चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों को शेयर कर दें। रोज़ाना 7 बजे ये लाइव क्लास में चलाता हूँ, तमाम मसाइल के बाब लेकर मैं आप हजरात के सामने आता हूँ, मसाइल के तमाम बाब मैं आप हजरात के सामने लेकर के आता हूँ। इसलिए आपसे गुजारिश है अदब के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों को शेयर कर दें, बहुत फ़ायदा होगा, इससे आपको भी फ़ायदा होगा और जो आपसे मसाइल सीखेंगे आपके ज़रिए से उनको भी फ़ायदा होगा और उसका सवाब भी आपको मिलेगा। देखिए, दवा के ऊपर से देखिए कितना इंपॉर्टेंट मसला है, कितना इंपॉर्टेंट मसला है कि किसी शख्स का हाथ वगैरह अगर कटा हुआ है और उसके ऊपर दवा लगी हुई हो तो वो वज़ू कैसे करेगा, देखिए मसला आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। जख्म पर दवा या चूना लगाया गया था, जख्म पर दवा या चूना लगाया था, जख्म अच्छा होने के बाद दवा या चूना जिस्म से ऐसे चिमट गया कि बिला मुशक्क़त उसका छुड़ाना दुश्वार है, बिला मुशक्क़त उसका क्या करना, छुड़ाना दुश्वार है। या सर्दी से हाथ पैरों में पड़ जाने वाले शगाफ में दवा भर दी और अब उसे निकालना बायसे तकलीफ है, तो इस सूरत में दवा के ऊपर से पानी बहा देना काफ़ी है, उसको रगड़ना ज़रूरी नहीं है, उसका रगड़ना ज़रूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है। ये ऐसे मसाइल हैं जो तमाम लोगों को ये सीखना ज़रूरी है, इसलिए कि तमाम लोगों के साथ ये मसाइल आते रहते हैं, इसीलिए ना शरीयत ने क़ैद कर दिया कि तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, के इल्म दीन का हासिल करना हर मोमिन के लिए क्या है, फ़र्ज़ है। इतना इल्म दीन सीखना कि अहकाम इलाहिया को आप सही तौर पर अदा कर सकें, अहकाम इलाहिया को आप सही तौर पर अदा कर सकें। माशाअल्लाह, इसी तरीके से आप जुड़े रहें, मेरे से बात करते रहें, तब आप पढ़ाने में मज़ा भी आता है और लगता है कि जी हाँ आप लोग पढ़ भी रहे हैं। इसी तरीके से कनेक्ट रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना। आगे देखें, एक मसला है, आप ये मसला समझ गए ना कि अगर चूना वगैरह लगा हुआ है और जख्म ऐसा है तो उसके ऊपर मसा किया जा सकता है, अगर उस लायक है तो या तो फिर पानी बहाया जा सकता है उसके ऊपर से, ठीक है। आगे देखें, मेहंदी और रंग की बात हो रही है। आज हमारे माशरे में मेहंदी वगैरह का भी रिवाज है और रंग वगैरह का भी रिवाज है। मेहंदी और आजकल का जो मेहंदी आ रहा है, आज हमारे मार्केट में जो मेहंदी आ रहे हैं वो आम तौर पर मेहंदी कम और रंग ज़्यादा है, मेहंदी कम और उसके अंदर कलर का असर ज़्यादा है। तो आप तुरंत लगाएंगे मेहंदी तो तुरंत मिनटों 5 मिनट के अंदर वो हाथ आपका कलर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह के मेहंदी बाजार में मार्केट में आ रहे हैं। तो इससे क्या मुराद है, ये मसला जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे क्या मुराद है आप समझिए इसे। वो देखिए, मेहंदी या ऐसा रंग जिसमें परत ना हो उसके बदन पर लगे रहने से वजू में कोई रुकावट नहीं होती है, वजू में कोई रुकावट नहीं होती है। मेहंदी या ऐसा रंग जिसमें परत ना हो, से क्या मुराद है, जिसमें परत ना
गुनाहों से मुराद ये है कि पानी के असर को अंदर जाने से ना रोकता हो, यानी कि ऐसी कोई मोटी परत ना हो। अब आप देख लेंगे मार्केट में बहुत सारे ऐसे पेंट वगैरह आते हैं जिसको प्लास्टिक पेंट के नाम से कहा जाता है, प्लास्टिक पेंट के नाम से जाना जाता है। तो प्लास्टिक पेंट जो होता है वो आम तौर पर दीवार में पानी को जज्ब करने नहीं देता है, इसलिए प्लास्टिक पेंट वगैरह लगाया जाता है। तो मेरे दोस्तों, अगर उस तरह का पेंट अगर आपके बदन पर, नाखून पर लगता है तो पानी के जो असरात हैं वो आपके बदन तक, आपके नाखून तक नहीं पहुंचने देगा, लिहाजा उस हालत में आपका वुजू नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जिस मेहंदी या जिस कलर की बात हो रही है वो बगैर परत वाले की बात हो रही है, लेकिन प्लास्टिक पेंट के अंदर जो होता है उसके अंदर एक परत होती है। जब देखेंगे दीवार वगैरह में या दरवाजे वगैरह में जब वो पेंट किया जाता है और बहुत काफ़ी दिनों के बाद जब वो पुराना हो जाता है तो उसके अंदर छोटी छोटी चिप्पी नुमा उसके अंदर से निकलती है, वही परत होती है ना उसकी, ठीक है। आगे देखें नील पॉलिश और लिपस्टिक, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी और अहम है। नील पॉलिश और क्या है, लिपस्टिक भी हमारे घर की औरतें, हमारे माशरे में ये रिवाज है ही कि लिपस्टिक लगाया जाता है। अब किस तरह का लिपस्टिक जायज़ है और किस तरह का लिपस्टिक वज़ू के लिए दुश्वार है, ये मसला आज आपके सामने आ गया है। आज आपके सामने ये मसाइल आ चुके हैं, लिहाजा आप इसको गौर से देखें और समझने की कोशिश करें, ठीक है। लोगों को जोड़ने की कोशिश करें मेरे दोस्तों। इस तरह के क्लासेस आम तौर पर नहीं चलाए जाते हैं। मैं कोशिश किया हूँ आप हजरात के सामने इस तरह के क्लास को लेकर के हाजिर हुआ हूँ। एक छोटी सी मेरी कोशिश, आप दुआ भी करें, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। आपसे दुआ है कि अल्लाह ताला कामयाब करे, इसके लिए आप हजरात दुआ भी करें, ठीक है ना। देखें नील पॉलिश और लिपस्टिक का क्या मसला है मेरे दोस्तों। नील पॉलिश वो रंगीन रोगन जो औरतें अपने नाखून पर लगाती हैं, नील पॉलिश के बारे में बात की जा रही है कि जो रंगीन रोगन जो होती है, जो नील पॉलिश जो औरतें अपने नाखूनों पर लगाती हैं, लगाने से नाखूनों तक पानी नहीं पहुंचता है। आम तौर पर आप देखेंगे नील पॉलिश आजकल बहुत गाढ़ा आता है, बिल्कुल गाढ़ा, इतना आप दे देंगे ना तो वो उसकी ही परत जम जाती है, उसकी क्या होती है, परत जम जाती है, तो उससे वजू नहीं होगा। लिहाजा वजू करते वक्त उसका छुड़ाना जरूरी होगा, वरना पाकी हासिल नहीं होगी, वरना वजू नहीं होगा। साफ साफ अल्फाज में नील पॉलिश लगाने वाली औरतें ये मसला सुन ले कि उनका वजू नहीं होता है अगर वो उसको ना छुड़ाएं और बगैर छुड़ाएं अगर आप वजू करती हैं, ठीक है ना। दूसरा मसला लिपस्टिक का है। दूसरा मसला किसका है, लिपस्टिक का है। इसी तरह से होंठों पर लगाई जाने वाली लिपस्टिक अगर तहदार हो तो वजू के लिए उसका भी साफ करना ज़रूरी है। देखिए लिपस्टिक में कितने सारे फ्लेवर्स आते हैं या कितने सारे वैरायटीज़ आते हैं, इसका इल्म तो उन्हीं हजरात को होगा जो इसका इस्तेमाल करते हैं। मेरे दोस्तों बस आप एक मसला और एक कानून को अपने जहन में बैठा लें कि लिपस्टिक अगर तहदार हो, लिपस्टिक क्या हो, अगर तहदार लिपस्टिक हो यानी कि तह बतह उसके अंदर आता हो, यानी कि पानी उसके अंदर से सरायत ना करे होंठ के अंदर, तो उसका भी छुड़ाना आपको ज़रूरी है। लिपस्टिक की हालत में वजू ना होगा। और मुसलमानों के अंदर लिपस्टिक माने कि नील पॉलिश का तो रिवाज अब अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया है, लेकिन लिपस्टिक का रिवाज आज भी है। लिपस्टिक का रिवाज आज भी मुसलमानों के घरानों में है, लिहाजा इस मसले को जानना ज़रूरी है। देखें आगे देखें, पेंट बदन पर लग जाए तो क्या हुक्म है। अगर किसी के बदन पर पेंट लग जाए, पेंट समझ रहे हैं ना, तो पेंट अगर किसी के बदन पर लग जाए तो उसका क्या हुक्म है मेरे दोस्तों। पेंट जो बदन में पानी के निफाज को, पानी को पहुंचने से मना करता हो, पानी के पहुंचने को रोकता हो, तो उसके बदन पर लगे रहने की हालत में गुस्ल या वजू सही नहीं होगा। वही मसला है जो पेंट का है यहाँ पर। नील पॉलिश का जो मसला है वही मसला यहाँ पर है कि मान के चलिए कोई बंदा है जो पेंटर है, जो बंदा है वो पेंटर है और पेंट करते करते उसके हाथ वगैरह में पेंट लग गए और वो ऐसा पेंट है जो तहदार पेंट है, तो उसका छुड़ाना ज़रूरी और अहम है। उसके छुड़ाए बगैर वजू वगैरह नहीं होगा, ठीक है। अब देखें इसके बाद एक मसला जो आ रहा है आप हजरात के सामने, बहुत ही इंटरेस्टिंग मसला आ रहा है जो वोट से रिलेटेड है। जो किससे रिलेटेड है, वोट से रिलेटेड है। यानी कि वोट देते वक्त आप को जो वहाँ पर वोट अधिकारी जो होते हैं वहाँ पर जाएंगे और आपसे पहले तो कागज़ वगैरह जो भी भरना होता है, उसके बाद भरवाने के बाद फिर आपको बोलेंगे लाइए उंगली, आप इस तरीके से उंगली देंगे, एक निशान लगाएंगे आपकी उंगली पर, लीजिए साहब आप वोट दे दिए, तब जा करके लोग ऐसे सेल्फी खिंचाते हैं। देखें आप लोगों ने देखा होगा।
बात समझ रहे ना। तो उस वोट के अंदर वोट देते वक्त जो नाखून में जो लगाया जाता है कलर, उस कलर का क्या हुक्म है, उस कलर का क्या हुक्म है, तो अभी हम लोग जानेंगे उस कलर का क्या हुक्म है। मेरे दोस्तों देखें, गौर से देखें, यहाँ पर दो बातें हैं, यहाँ पर दो बातें हैं, दोनों बातों को मैं आप हजरात के सामने रखूंगा। आप लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। देखें, वोट देते वक्त अलामत के तौर पर उंगली पर जो रोशनाई लगाई जाती है, वोट देते वक्त अलामत के तौर पर उंगली पर जो रोशनाई लगाई जाती है, जिसका असर कई दिनों तक रहता है। जाहिर सी बात है कि वोट देने के बाद जो रोशनाई लगाई जाती है निशान के तौर पर, उसका असर काफ़ी दिनों तक रहता है। वो चूँकि तहदार नहीं होता है, समझ रहे हैं ना, वो तहदार नहीं होता है, बिल्कुल पानी के जैसा होता है, लेकिन कलर बड़ा सख्त होता है कि वो रहता है बहुत लंबा। इसीलिए उसके लगे रहने की हालत में वज़ू और गुस्ल दोनों जायज़ हैं, वज़ू और गुस्ल दोनों जायज़ हैं। नोट में एक बात कही गई है, इसको भी आप इस मसले के जानिब ही सुन ले, इस मसले के साथ ही रिलेटेड है वो, इसीलिए इसको नोट में एक बात है, उसको सुन ले। नोट, बाज़ हजरात की राय ये है कि इस रोशनाई को छुड़ाते वक्त मामूली सी परत उतरती है। बाज़ लोगों का ये भी कहना है कि इस पेंट को छुड़ाते वक्त भी छोटी सी पतली सी परत उतरती है, इसलिए ये वज़ू को रोकती है, इसलिए इससे वज़ू न होगा। लेकिन असल कौल क्या है, इसके तरफ ध्यान दे बई। एहतियात इसमें है कि इस रोशनाई को जल्द अज छुड़ाने की कोशिश करें, ठीक है ना। एहतियात क्या है कि आपको के हाथ में जो वोट के निशान के तौर पर लगाया गया है, उस रोशनाई को जल्दी से जल्द छुड़ाने की कोशिश करें, लेकिन ये छूटता नहीं है। बात समझ रहे हैं ना, कोशिश करें, अगर छूट जाए तो ठीक, और ना छूटे तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप वज़ू करते रहें, नमाज़ पढ़ते रहें, वज़ू होगा और नमाज भी इंशाल्लाह होगी, ठीक है। इसी तरीके से आप देखें कि ज़ायद उंगली, एक इंसान है जिसकी उंगलियां ज़ायद हैं। मान के चलें आम तौर पर एक इंसान के हाथ में 5 उंगली होती है। एक इंसान के हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? 5 उंगली होती है एक इंसान के हाथ में। लेकिन मान के चलें किसी की उंगली 6 है, मान के चले इधर किसी का बढ़ा हुआ होता है या फिर इस साइड में किसी का बढ़ा हुआ होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी की उंगली जायद है, 5 की जगह में 6 है, तो क्या उसका भी धोना फर्ज है? तो जी हाँ, उसका भी धोना फर्ज है, उसको भी धोना पड़ेगा वजू की हालत में आपको, वरना वजू नहीं होगी आपकी। हाथ या पैर के जायद उंगलियों का धोना भी फर्ज है, हाथ और पाँव की जायद उंगलियों का धोना भी क्या है? फर्ज है, ठीक है। आगे देखें, लंबे नाखूनों के नीचे पानी बहाना फ़र्ज़ है। आज के दौर में बड़ा स्टाइल वाला मामला चल गया है, ये चल गया है कि लोग जो है वो लंबे नाखून रखते हैं, ख़ास करके इस उंगली का जो नाखून होता है वो बड़ा लंबा होता है। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को ये देखा जाता है कि स्टाइल के तौर पर, यानी कि खूबसूरत दिखाने की वजह से अपनी उंगलियों को नाखून को बड़ा लंबा रखना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, मसला क्या कहता है इस पर आप ये देखें, इस पर हमारा इस्लाम क्या कहता है वज़ू के मसाइल के बाब में। देखें, अगर नाखून इतने बड़े हुए हों कि उंगलियों का सिरा उनके अंदर छुप जाए, उंगलियों का सिरा जो है उनके ऊपर क्या हो जाए? छुप जाए, तो जब तक उंगलियों के सिरे तक पानी ना पहुंचाया जाए तो वुज़ू दुरुस्त ना होगा। मान के चले किसी की उंगली है और उसका नाखून इतना बड़ा है, अब आप वुज़ू कर रहे हैं और उंगली के सिरे, नाखून का जो सिरा है ये वाला, इस हालत में नाखून चूँकि बड़ा है तो अब यहाँ तक अगर पानी नहीं पहुँचा तो आपका वुज़ू नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों, शरीयत ने ऐसे भी मना किया है कि आप नाखून ज़्यादा ना रखें, बड़ा ना रखें, क्योंकि उसमें बहुत सारी खराबियाँ भी हैं साइंटिफिक के एतबार से, कि आपके नाखून के निचले हिस्से में गंदगी जम जाती है और वही गंदगी फिर आपके के जिस्म में, यानी खाना खा रहे हो आप या फिर वगैरह वगैरह, तो वो आपके लिए नुकसानदेह भी है और अच्छा भी नहीं लगता है। कहीं अच्छे पढ़े लिखों के मजलिस में बैठेंगे नाखून बड़ा रख करके तो अच्छा भी नहीं लगता है, मैल कुचैल जमा हुआ रहता है। इसीलिए बेहतर यह है कि हर हफ्ते एक दिन मुतय्यन कर लें नाखून काटने का, ठीक है ना। जुमा के दिन काट लें, जुमेरात के दिन काट लें, वगैरह वगैरह, ठीक है। आगे देखें
کہ ہتھیلی کے باقی ماندہ تری سے مسح کرنا کیسا ہے۔ ہتھیلی کے باقی ماندہ تری سے مسح کرنا، سر کا جو مسح ہے وہ مسح کرنا کیسا ہے۔ میرے دوستو آپ حضرات تھوڑا سا دل جمعی کے ساتھ رہیں، فیس بک والے یوٹیوب والے دونوں حضرات سے میں گزارش کر رہا ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا میں آپ حضرات کو، لیکن جو میں مسائل پڑھ رہا ہوں اس مسئلے کو اس طریقے سے اس انداز میں پڑھنے کے لیے آپ کو کسی مدرسے میں داخلہ لینا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، کسی مدرسے میں داخلہ لینا پڑ جائے گا، لہٰذا میں آپ کو وقت دے رہا ہوں، اور آپ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ آپ حضرات وقت دے رہے ہیں، آپ کچھ سیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ دیکھیں، اگر کسی شخص نے ہاتھ میں پانی لے کر چہرہ یا کہنی پر ڈالا تو اس ہتھیلی میں رہ جانے والی تری سے سر کا مسح کرنا درست ہے، سر کا مسح کرنا درست ہے۔ کیا مسئلہ ہے ذرا سا غور سے سنیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ کنفیوژن والا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں دو باتیں ہیں، مائع مستعمل اور وغیرہ وغیرہ، تو یہ کون سا پانی ہے دیکھیں آپ غور سے سنیں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی شخص نے ہاتھ میں پانی لے کر چہرہ یا کہنی پر ڈالا تو اس ہتھیلی پر رہ جانے والا پانی کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے لیا اور ایسے ہاتھ میں ڈالا اور آپ کے ہاتھ میں وہ پانی رہ گیا ہے، یہاں سے ٹپکا ہوا پانی کی بات نہیں ہو رہی، آپ نے یہاں سے جو پانی لیا اور ایسے ڈالا اور پھر یہاں پر آپ کے ہاتھ میں کچھ پانی رہ گیا، تو اس پانی سے مسح اگر آپ کر رہے ہیں تو درست ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں، دیگر اعضاء کے مستعمل پانی سے مسح درست نہیں ہے۔ مان کے چلے ایک انسان ہے جو ہاتھ لیا پانی اور پانی لینے کے بعد ہاتھ دھویا پورا، اور اس ہاتھ دھونے کے بعد جو پانی ٹپک رہا ہو اس پانی سے اگر وہ کیا کرتا ہے، مسح کرتا ہے، تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ہاتھ یا چہرہ دھونے کے بعد اس سے ٹپکنے والے مستعمل پانی سے سر کا مسح کیا تو درست نہیں ہوگا، تو درست نہیں ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا، میں نے آپ سے کہا تھا، اسی لیے کہ بہت باریک بات میں کر رہا ہوں، آپ لوگوں سے غور سے سنیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ہاتھ یا چہرہ دھونے کے بعد اس سے ٹپکنے والے مستعمل پانی سے سر کا مسح کیا تو درست نہیں ہوگا، چونکہ جس پانی سے ایک مرتبہ طہارت حاصل کی جا چکی ہو وہ دوبارہ طہارت حاصل کرنے کے لائق نہیں رہتی ہے، اس پانی سے دوبارہ طہارت حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا نا، اسی لیے کیا کہا گیا کہ اگر ہاتھ میں آپ پانی ہے اور اس سے آپ ہاتھ دھوئے اور ہاتھ میں بچا ہوا جو پانی ہے جس سے آپ نے ڈالا ہے تو اس سے آپ مسح کر سکتے ہیں، لیکن اس ہاتھ سے اس ہاتھ کو آپ نے دھویا اور اس ہاتھ سے اگر پانی ٹپکا اور اسی سے آپ نے مسح کر لیا تو درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ آگے دیکھیں، میرے دوستو ابھی آپ کو میں نے جو باتیں بتائی ہیں وہ مسائل کی باتیں میں پڑھا رہا تھا آپ کو، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، جیسے کہ انگلی میں اگر آپ کوئی انگوٹھی وغیرہ پہنے ہیں تو انگوٹھی کو ہلانا، اس کو وہاں تک پانی پہنچانا اس طریقے سے ضروری ہے، یا پھر عورتیں بھی بہت ساری ایسی چیزیں پہنتی ہیں تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ پانی ہلا سازی کر کے وہاں تک پہنچائے وغیرہ وغیرہ۔ میں آپ لوگوں کو ابھی جو مسئلہ پڑھا رہا تھا وہ فرائض میں بتا رہا تھا۔ کون سی بات بتا رہا تھا؟ میں نے بتایا فرائض کے بارے میں، اور کتنے فرائض بتایا؟ کتنے فرائض بتایا آپ لوگوں کو؟ میں نے 4 فرائض بتائے ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ کتنے فرائض؟ میں نے 4 فرائض بتائے، اور چہرہ کے حدود بھی میں نے بتایا کہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے، کہاں سے کہاں تک دھونا ہے، یہ تمام باتیں بتائی گئی آپ حضرات کو۔ اب میرے دوستو یہاں پر آ رہی ہے ایک سنت کی بات، وضو کی سنتوں کے بارے میں باتیں آ رہی ہیں کہ وضو کے اندر کتنی سنتیں پائی جاتی ہیں، وضو کے اندر کل کتنی سنتیں ہیں۔ میرے دوستو دیکھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا
देखें, वज़ू के सुन्नतों के बारे में यहाँ पर बातें आ रही हैं। वज़ू की कुल 14 सुन्नतें हैं। वज़ू की कुल 14 सुन्नतें हैं। मेरे दोस्तों, वज़ू की सुन्नतें आप नंबर 1 से देखें। नंबर 1 नियत करना, नंबर 1 नियत करना। नंबर 2 तस्मिया यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पढ़ना। नंबर 1 नियत करना। नंबर 1 क्या है? वज़ू की सुन्नतें क्या है? नंबर 1 बिस्मिल्लाह, नंबर 1 नियत करना। नंबर 2 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। नंबर 3 इब्तिदा में 3 मरतबा कहनियों तक हाथ धोना। शुरू में 3 मरतबा कहनियों तक हाथ धोना। नंबर 4 मिसवाक करना। नंबर 4 मिसवाक करना। नंबर 5 3 मरतबा कुल्ली करना। नंबर क्या है? नंबर 5 में 3 मरतबा कुल्ली करना। नंबर 6 3 मरतबा नाक में पानी डालना। नंबर 6 में क्या है? 3 मरतबा नाक में पानी डालना। नंबर 7 मुंह और नाक की सफाई में मुबालगा करना। मुंह और नाक की सफाई में मुबालगा करना। ये सुन्नत रोज़ेदार के लिए नहीं है। ये सुन्नत क्या है? ये सुन्नत रोज़ेदार के लिए नहीं है। आगे देखें, नंबर 8 में दाढ़ी में खिलाल करना। नंबर 8 क्या है? दाढ़ी में खिलाल करना। नंबर 9 उंगलियों में खिलाल करना। नंबर 9 उंगलियों में खिलाल करना। इसी तरीके से नंबर 10 तमाम आज़ाए वज़ू को 3 मरतबा धोना। तमाम आज़ाए वज़ू को क्या करना? तमाम आज़ाए वज़ू को 3 मरतबा धोना। नंबर 11 पूरे सर का मसह करना। पूरे सर का मसह करना, चौथाई सर का मसह करना ये फ़र्ज़ है, और पूरे सर का मसह करना क्या है? ये सुन्नत में से है। ठीक है, आगे देखें, नंबर 12 कानों का मसह करना। नंबर 12 कानों का मसह करना। नंबर 13 तरतीब वार वज़ू करना। तरतीब वार वज़ू करना। एक शख्स है जो पहले पाँव धो लेता है, उसके बाद हाथ धो लेता है, उसके बाद कुल्ली करता है, यानी कि बेतरतीब वज़ू करता है, तो क्या उस शख्स का वज़ू हो जाएगा? तो जी हाँ, उस शख्स का वज़ू हो तो जाएगा, लेकिन तरतीब के ख़िलाफ़ वज़ू होगा। वो क्या हो जाएगा? तरतीब के ख़िलाफ़ होगा। यानी जो तरतीब कुरान व हदीस में वारिद है उसके मुताबिक वज़ू करना चाहिए इंसान को उसके तरतीब वार वज़ू करना चाहिए। नंबर 14 पै दर पै आज़ाए वज़ू पर पानी बहाना, यानी एक आज़्व के सूखने से कबल अगले आज़्व को धो लेना। ये सुन्नत मुत्तफ़क़ अलैह है। यानी कि ये बात कही जा रही है कि मान के चले कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा शख्स है जो एक हाथ को धोता है और इतना रगड़ता है, दूसरे हाथ में जब चला जाता है, एक हाथ को धोने के बाद जब दूसरे हाथ को धोता है तो इतना रगड़ता है बाएं हाथ को कि दाहिना हाथ उसके धोते धोते सूख जाता है। तो यहाँ पर सुन्नत ये नहीं है, ये सुन्नत के खिलाफ बात हो जाएगी। यानी कि तरतीब वार वज़ू करना ये तो अलग सुन्नत है ही है, लेकिन पै दर पै वज़ू करना यानी कि एक आज़्व के सूखने से कबल दूसरे आज़्व को धो ले। क्या करे? दूसरे आज़्व को धो लेना। ये सुन्नत मुत्तफ़क़ अलैह है। और बहुत से उलमा ने दाहिनी तरफ से इब्तिदा हाथ और पैरों की उंगलियां की तरफ से धोने का एहतमाम किया, यानी कि दाहिनी जानिब से शुरुआत करे और हाथ और पैर की उंगलियों को जब धोवे तो उंगलियों की तरफ से उसका धोने का काम शुरू करे। गर्दन का मसाह रगड़ कर धोने वगैरह को भी सुन्नत कहा है। मेरे दोस्तों, आप लोगों ने जो सुन्नत की बातें कही गई आप लोगों ने समझ गया। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग समझ गए। वक्त भी काफ़ी हो गया है। मैं आप हजरात के सामने आज इसलिए हाजिर हुआ ताकि आपको ये मालूम हो जाए, आज इतवार का दिन है और बहुत सारे लोग छुट्टी पर होते हैं, तो आपको ये मालूम हो जाए कि मगरिब के बाद ये क्लास चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप हजरात उस क्लास में ज़रूर आने की कोशिश करें, बड़ा फ़ायदा होगा आप लोगों को। मैं मसाइल हो या अक़ायद हो या इसी तरीके से तारीख़ हो, इंशाअल्लाह मैं कोशिश ये होती है हमारी कि मैं बेसिक टू एडवांस लेकर के चलूँ। मेरी कोशिश क्या होती है, मैं बेसिक टू एडवांस उस मसाइल को लेकर
کے چلوں, یہ میری کوشش ہوتی ہے. میرے دوستوں آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جو نئے حضرات ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں, لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں, لوگوں سے ڈسکشن بھی کریں, اور یہاں پر جو مسئلہ آپ سیکھتے ہیں اس مسئلے کو لوگوں سے بھی آپس میں باتیں کریں, اور تب جا کر کے آپ کو وہ مسائل یاد ہوں گے انشاءاللہ. میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے, لوگوں کو فائدہ ہو سکے اس سے. اسے ایک میری کوشش ہے. دیکھ لیں وضو کی سنتیں میں پھر سے آپ کو پڑھ کر کے سنا رہا ہوں, ٹھیک ہے. وضو کی سنتیں یہ ہیں: نمبر 1 نیت کرنا, نمبر 2 تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا, نمبر 3 ابتدا میں 3 مرتبہ ہاتھ دھونا, گٹوں تک 3 مرتبہ ہاتھ دھونا, نمبر 4 مسواک کرنا, نمبر 5 3 مرتبہ کلی کرنا. آپ لوگوں نے اس کلاس میں وقت دیا, آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے اور اپنا قیمتی وقت آپ حضرات نے دیا. میرے دوستو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے آنے کو قبول فرمائے, اللہ تبارک و تعالی ہمارے کہنے کو قبول فرمائے. میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ کلاس, اس طرح کا کلاس جو چل رہا ہے, لوگوں کو کافی فائدہ ہو اور اس سے لوگ کافی فائدہ اٹھا سکیں, اور ہم سب کے لیے, ہمارے لیے, آپ کے لیے ذریعہ نجات ہو سکے. اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.